Good morning, dear children. How are you? Hope you are fit and fine and taking good care of yourself. So, children, earlier we read about Satwana Dynasty. So, let us recapitulate about Satwahanas. So, children, tell me about the founder of Satwahana Kingdom. So, yes, you are thinking right. King Simuka was the founder of Satwahana Kingdom. Next question. Who was the last great ruler of Satwahana Dynasty, bache? So, Yajnashri Satkarni was the last great ruler of Satavahana dynasty. What's the fine example of cave architecture of Satavahanas, bache? So, the rock-cut Chaitya Hall at Karle in Pune. It is the fine example of cave architecture. And also, children, a beautiful stupa at Amravati was also built by Satavahanas. So, children, let us move ahead towards our next topic. So let us discuss about three main dynasties of South India: Chola, Cheras and Pandias. So children, the territory on the south of rivers Krishna and Tungabhadra extending up to Kanyakumari is known as South India or Carnatic region. So children, ये आपकी कन्याकुमारी है और यहाँ से आपकी रिवर तुंगभद्रा. So this area is known as South India. It is also known as Carnatic region. In the later period of megalithic culture, you already know about bache megalithic culture, three kingdoms emerged powerful in southern India. Three powerful kingdoms emerged हुई बच्चे South India में, and they were Cholas, Pandias and Cheras. Okay, so children, look at the symbols of three great empires. So the symbol of Chera Dynasty, bow and arrow, and Chola Dynasty symbol was jumping tiger, and twin fish was the symbol of Pandyan Dynasty. Okay, indeed, these all the three kingdoms were very powerful, which ruled over South India. So children, as we have already discussed about Sangam literature, so हमें इन तीनों डायनेस्टीज के बारे में संगम लिटरेचर से पता चलता है. What is Sangam literature, बच्चे? So Sangam was the ancient Academy of Tamil poets and authors in the city of Madurai in South India under the Pandyan kings. Okay, so Sangam literature बच्चे एक बहुत बड़ी लिटरेरी मूवमेंट थी जो एटलीस्ट बच्चे 500 to 600 ईयर्स तक चली थी. और जो ये साउथ की डायनेस्टीज़ हैं बच्चे, इन सभी रूलर्स ने और इनके सक्सेसर्स ने इस लिटरेरी मूवमेंट को सक्सेसफुल बनाया. और इस लिटरेरी मूवमेंट को बच्चे साउथ की इन तीन किंगडम के रूलर्स ने पैट्रोनाइज किया बच्चे, और उनके सक्सेसर्स भी आगे इसी लिटरेरी मूवमेंट को आगे बढ़ाते रहे. एंड बच्चे ड्यूरिंग दिस संगम एज मैनी वैल्यूएबल बुक्स वर रिटन. बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल लिटरेचर लिखा गया बच्चे इस टाइम में. कोई ग्रामर लिखे गए, एंशियंट लैंग्वेजेस को एनरिच किया गया. मोस्टली जो तमिल लिटरेचर था वो बहुत एनरिच हुआ इस मूवमेंट से. एंड बच्चे द एंशियंट संगम पोइम्स मेंशन न्यूमरस किंग्स एंड प्रिंसेस ऑफ दीज थ्री किंगडम्स. ओके, तो जो संगम लिटरेचर के टाइम बुक्स लिखी गई थी बच्चे, उनमें इन थ्री किंगडम्स के रूलर्स के बारे में प्रूफ मिलते हैं. गॉट इट? सो चिल्ड्रन, द एग्जैक्ट संगम एज इज नॉट नोन, बट इट इज़ बिलीव्ड दैट द पीरियड फ्रॉम 300 BCE to 300 century was the period of Sangam literature. Okay, and this period is known as Sangam age. Okay, ये जो थ्री किंगडम्स है बच्चे, इनके बारे में हमें संगम लिटरेचर से तो पता चलता ही है. साथ में अशोकाज इंस्क्रिप्शंस, महाभारता, जातका स्टोरीज ऑफ बुद्धिस्ट टेक्स्ट एंड ट्रैवल अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स, उनसे तो ऑल ओवर इंडिया की इंफॉर्मेशन मिलती ही है. इसकी अशोका की इंस्क्रिप्शंस तो बच्चे ऑल ओवर इंडिया में हैं, और वो डिफरेंट किंगडम्स के बारे में बहुत यूज़फुल इंफॉर्मेशन देती हैं. ओके, और महाभारता, जातका स्टोरीज़ और ट्रैवल अकाउंट्स जो काफ़ी फॉरेन ट्रैवलर्स लिख गए हैं, उससे भी इन थ्री किंगडम्स के बारे में एविडेंसेस मिलते हैं. ओके, देन देयर कम्स बच्चे, डू यू नो? सो तमिल पोइम्स प्रेजेंटेड बाय पोइट्स एट संगम्स मीन्स assemblies, describe the events and conditions of that time.
जो तमिल पोइम्स थी बच्चे, वो उस टाइम की इवेंट्स और कंडीशंस के बारे में बताती हैं। दे वर कंपाइल्ड इनटू संगम लिटरेचर, और वो तमिल पोइम्स बच्चे संगम लिटरेचर का ही पार्ट हैं। 3 संगम्स वर हेल्ड एट मदुरई ओवर अ पीरियड ऑफ 3 to 4 सेंचुरीज। तो इसी टाइप के बच्चे 3 to 4 संगम हुए हैं मदुरई में। आज के मॉडर्न एरा में आप सेमिनार समझ लीजिए। संगम मीन्स असेंबली और सेमिनार ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। इस संगम असेंबली में बच्चे बहुत ही ज़्यादा लर्नड पर्सनैलिटीज़ को बुलाया जाता था, विद्वानों को बुलाया जाता था, और काफ़ी डिबेट्स होती थी और बुक्स लिखी जाती थी उसमें। सो चिल्ड्रन, लेट अस डिस्कस अबाउट द 3 मेन किंगडम्स ऑफ साउथ इंडिया। चिल्ड्रन, देयर कम्स चोला डायनेस्टी। The Chola Kingdom or Chola Mandala ruled over South India between Pennar and Vellar rivers. So बच्चे, जो पेन्नार एंड वेल्लार रिवर्स हैं, ये वहाँ की लोकल रिवर्स हैं, ठीक है। The extent of their rule was always changing due to the defeats or victories in wars with the neighboring regions. So चोला, चेरास, पंड्यास की आपस में भी कई बार कन्फ्लिक्ट होती रहती थी, और भी कई स्टेट्स के साथ इनकी कन्फ्लिक्ट चलती रहती थी। तो जो इनका एम्पायर का एक्सटेंट है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहा, बट रफली बच्चे चोलास का रूल यहाँ पर रहा हमेशा ही, ओके, पेन्नार एंड वेलार रिवर्स के बीच में। सो चिल्ड्रन, चोला सेटअप देयर कैपिटल एट कावेरी पट्टनम। पहले उन्होंने कावेरी पट्टनम में अपनी कैपिटल को एस्टैब्लिश किया बच्चे, बट बाद में वो तंजौर एंड गंगईकोंड चोलापुरम की तरफ शिफ्ट हो गए। So here there is Gangaikonda Cholapuram and here there is Tanjavur. Okay. So जो आज का तमिल का एरिया है बच्चे, that area was under Chola Dynasty. वहाँ पर Chola Dynasty रूल करती थी. Okay. So children, according to the Sangam literature, King Karikala defeated the Cheras, Pandias and even Sri Lanka. तो संगम लिटरेचर के अकॉर्डिंग तो बच्चे ये माना जाता है कि जो फेमस चोला किंग करिकल था बच्चे, उसने चेरास को भी डिफीट दे दी, पांड्यास को भी, एंड इवन श्रीलंका को भी उसने हरा दिया था। ओके, ही वाज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ अर्लियर चोलास बच्चे। करिकला फॉलोड द वैदिक रिलीजन। करिकला बच्चे वैदिक रिलीजन को फॉलो करता था। ही डेवलप ट्रेड एंड इंडस्ट्री। उसने इंडस्ट्री एंड ट्रेड को बहुत ज़्यादा डेवलप किया। एंड जो बच्चे चोला डायनेस्टी का फेमस फीचर रहा है, that was its strong navy, because this dynasty ruled near the confluence of Indian Ocean and Bay of Bengal. चोला डायनेस्टी जो थी बच्चे, इंडियन ओशन और बे ऑफ बंगाल के कॉन्फ्लुएंस पे थी। सो चोला डायनेस्टी ने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नेवी बनाई, तभी तो इन्होंने श्रीलंका को भी डिफीट दे दी थी। ओके, सो चिल्ड्रन, करिकला ने स्ट्रॉन्ग आर्मी भी बनाई थी और स्ट्रॉन्ग नेवी भी बनाई थी। ही गेव रॉयल पैट्रोनेज टू तमिल लिटरेचर। अगेन, रॉयल पैट्रोनेज मतलब कि उसके कोर्ट में बहुत ज़्यादा लर्नड पर्सन्स थे, बहुत ज़्यादा विद्वान थे, जो कि कॉन्टीन्यूसली तमिल लिटरेचर में कोई ना कोई बुक लिखते रहते थे। ओके, सब्सिक्वेंटली द चेरास, पंड्यास एंड लेटर पल्लवास conquered the territories of Cholas from the weak successors of करिकला। अर्लियर चोलास की हिस्ट्री में करिकला ही ग्रेटेस्ट किंग था, बाकी जो उसके वीक सक्सेसर हुए बाद में बच्चे चेरास एंड पंड्यास ने करिकाल के वीक सक्सेसर्स को डिफीट दे दी और उनकी डायनेस्टी को अपने अंडर मिला लिया। ओके, सो चिल्ड्रन, हैव अ लुक एट द ग्रेटेस्ट चोला किंग करिकाल। वन मोर स्टैचू ऑफ करिकाल, अगेन स्टैचू एट म्यूजियम। So indeed Karikal was the greatest king of the Chola dynasty. The main contributions of Karikal, as you can see, Kalangi Dam बच्चे, and it was believed that it was made in 1st century. How ancient it is, कितना ancient है बच्चे, and कितने अच्छे वे में ये बनाया गया है उस टाइम में ये डैम। So this is also the greatest contribution of Karikal in the field of infrastructure. एंड बच्चे, डू यू नो में भी दिया हुआ है कि किंग करिकला brought 12,000 prisoners of war POWs from Sri Lanka and forced them to build a dam on river Kaveri. तो यही था बच्चे वो रिवर कावेरी पे बना हुआ डैम। तो श्रीलंका को जब उसने डिफीट दी थी बच्चे, सो वहाँ से 12,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर को लाया गया। तो उन्होंने ही यहाँ पे लेबरर्स की तरह काम किया और इस डैम को बनाया। सो चोलास वर ग्रेट वॉरियर्स बच्चे,
Early Cholas were defeated by Cheras and Pandias, but later on बच्चे चोलाज ने फिर से अपनी किंगडम को एस्टैब्लिश किया और जो लेटर चोला किंग्स थे बच्चे वो बहुत ही ज़्यादा ब्रेव थे एंड उनके बारे में आप 7th क्लास में पढ़ेंगे. ओके. देन चिल्ड्रन, let us discuss about the Pandyan dynasty. The kingdom of the Pandyas was limited to the southernmost and southern eastern parts of the Indian peninsula. So children, जो Pandyas की dynasty थी बच्चे वो Indian peninsula के southernmost और southern eastern part में established थी. Okay, and they made their capital at Madurai. Madurai means Madras और present Chennai. Okay, तो वहाँ पे उन्होंने अपनी कैपिटल को एस्टैब्लिश किया. ओके. सो चिल्ड्रन, नाजुनेडियम वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट किंग ऑफ पंड्या डायनेस्टी. तो जो नाजुनेडियम था बच्चे वो सबसे इम्पॉर्टेंट किंग था पंड्या डायनेस्टी का. और जो पंड्या किंगडम थी वो किस कारण बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस हो रही थी? ड्यू टू ट्रेड विद रोमन्स. ओके, उनका ट्रेड रोमन्स के साथ चलता था. ओके, एंड द ट्रेड ऑफ पर्ल्स वाज डेवलप्ड बाय पंड्यन डायनेस्टी. सो बच्चे जो पर्ल्स का ट्रेड था, मोतियों का ट्रेड था, वो किसने डेवलप किया था? पंड्या डायनेस्टी ने. ओके. सो चिल्ड्रन, दिस वाज द फ्लैग ऑफ पंड्या डायनेस्टी. ट्विन फिश वाज द सिंबल ऑफ पंड्या डायनेस्टी बच्चे. एंड मदुरई और पंड्यन किंगडम इज ऑल्सो फेमस फॉर बच्चे फेमस मीनाक्षी टेम्पल. So Meenakshi temple is in Madurai. It is magnificent and beautiful temple बच्चे, as you can see in this picture. Okay. Whose view of Meenakshi temple. Indeed, it is beautiful temple and fine example of Pandyan architecture. And children, the famous assemblies or sangams held at Madurai during the Pandya's rule prove that they were great patrons of literature. So बच्चे, जो संगम लिटरेचर लिखा गया था उसमें से फेमस जो असेंबलीज हुई थी वो मदुरई में ही हुई थी अंडर द लीडरशिप ऑफ पंड्यन रूलर्स. ओके, इससे पता चलता है कि वो विद लिटरेचर को फ्लरिश करने में कितने इंटरेस्टेड थे और लर्न पर्सनैलिटीज़ का बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे. ओके. सो द रूल ऑफ पंड्याज कॉन्टिन्यूड अप टिल द 11th century. सो पंड्या किंगडम का रूल बच्चे 11th century तक चला. लेटर चोला रूलर प्रांतका वन कैप्चर्ड मदुरई एंड डिफीटेड पंड्यास. अर्ली चोलास को तो बच्चे पंड्यास एंड चेरास ने डिफीट देती थी, बट बाद में फिर से चोला किंगडम एस्टैब्लिश हुई जिसमें कि प्रांतका वन एक रूलर थे. उन्होंने मदुरई को कैप्चर कर लिया एंड डिफीटेड द पंड्यास. ओके, एंड पंड्या किंगडम को चोला किंगडम में मर्ज कर दिया. ओके. नाउ चिल्ड्रन, हैव ए लुक एट द Pandya Nayaka shrine built by Sundara Pandya. So children, ये पंड्या नायका श्राइन है. श्राइन मीन्स तीर्थ स्थल और इसे किसने बनाया है बच्चे? सुंदरा पांड्या. एंड बच्चे दिस श्राइन, ये जो तीर्थ स्थल है ये फेमस चिदम्बरम नटराजन टेम्पल का ही एक पार्ट है. So children, this is famous चिदम्बरम नटराजन टेम्पल एंड जो पंड्या नायका श्राइन है वो इसी टेम्पल के एक पार्ट में सिचुएटेड है. ओके. और उसे पंड्या नायका श्राइन क्यों कहते हैं बच्चे? बिकॉज ये टेम्पल किसके लिए बनाया गया था? जो शिवजी भगवान जी के सेकंड बेटे हैं उन्हें मुरुगन कहा जाता है. ओके, बट पॉपुलरली इट इज़ नोन एज पंड्या नायका श्राइन. दिस पंड्या नायका श्राइन was built by Sundara Pandya. Okay, that's why it is known as Pandya Nayaka shrine. Okay. Then children, let us discuss about the Cheras. The Chera Kingdom or Kerala Putra consisted of a narrow strip of land between sea and the western Ghats over Malabar, Cochin and Travancore, parts of modern Kerala and Tamil Nadu. तो जो चेरा किंगडम थी बच्चे, तो बच्चे वो आज का मॉडर्न केरला एंड सम पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु इससे बिलोंग करती थी. So children, this narrow strip of land between sea and western Ghats over Malabar, Cochin and Travancore was related to Chera Dynasty. Okay. और आज के टाइम में ये मॉडर्न केरला एंड तमिलनाडु का पार्ट है. ओके. So children, Vanchi was the capital of Chera Kingdom. Two great rulers of Chera Dynasty were Nedunjiral and Senguttavam. So children, two great rulers were Nedunjiral and Senguttavam.
The Cheras had trade relations with Rome and Egypt. So Chera Kingdom के बच्चे trade relations थे Rome and Egypt के साथ. Okay. This is the pic of King Sengotavam, one of the greatest ruler of Chera Dynasty बच्चे. And children, जो ये सेनगोटवम किंग था बच्चे चेरा डायनेस्टी का, इसने नॉर्थ के एरियाज़ को भी इन्वेड कर लिया था बच्चे, एंड इवन गंगा को भी क्रॉस कर लिया था. ओके, सो ही वॉज द ग्रेटेस्ट एवर किंग ऑफ द चेरा डायनेस्टी. सो चिल्ड्रन हैव अ लुक एट द 3 किंगडम्स ऑफ संगम एज, चेरास, चोलास एंड पांड्यास. चेरास की कैपिटल बटे वंजी थी, चोलास की कैपिटल उदयपुर थी, whereas Pandias की capital मदुरई थी. So children, all these 3 kingdoms were greatest kingdoms of South India. And बच्चे, the contribution of all these 3 kingdoms in writing up the Sangam literature can't be ignored. So इन तीनों dynasties का contribution भुलाया नहीं जा सकता है बच्चे, specifically in the field of Sangam literature. Okay, so that's all in today's topic. Revise your topic. Okay.